Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDI practice series. First pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start reading this particular set. 6 candidates A, B, C, D, E and F participated in the quiz competition. A total of 24 questions were asked, 4 questions to each candidate. So each candidate was exactly asked 4 problems, 4 questions. If a candidate cannot answer a question, it is passed to the next candidate. And if he also cannot answer the question, it is passed to the next candidate, and so on until the question is answered or till each of the 6 candidates gets a chance to answer the question. Right? Normally quiz के जो आपके rules होते हैं, they are applicable to this. So for example, A को पूछा, A ने नहीं बताया, it passes on to B. B अगर नहीं बताया, it passes on to C. C नहीं बताया, it passes on to D, and so on till F तक जाएगा. Right? तो वही बोला था, till either any one of them answers or till everyone gets a chance to answer the question, right? The question are always passed in the order A, B, C, D, E, F and then from F to A, B and so on. What does this mean? Starting आपका जैसे जहाँ से भी होगा ना, एक linear order में चलना चाहिए. A के बाद B पे आएगा, फिर C पे आएगा, फिर D पे आएगा, E पे आएगा, F पे आएगा and F के बाद फिर वापस साइकिल कहाँ चली जाएगी? A पे चली जाएगी. ठीक है, that is what is given in this scenario. When a question is answered, the candidate gets 6 points. Now it is telling about the points to each problem. When a question is answered, the candidate gets 6 points if it is a direct question. तो direct question क्या हुआ? That is if he was the first candidate to be asked the question, right? तो जैसे A से पूछा, A ने आंसर कर दिया, तो he'll get 6 points because A को ही problem direct करा गया था. So it was a direct question, so right? 5 points if it is passed once, that is if he is the second candidate to be asked that question, and so on, and finally the candidate gets only 1 point if it is passed 5 times, that is when 5 persons pass it. मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे लेट्स टेक एक डायरेक्ट प्रॉब्लम है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो टेबल में भी दिख रहा है, क्वेश्चन डायरेक्टेड एट ए. तो ए से पूछा गया, अगर ए आंसर कर देगा तो ए को 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे. अगर ए आंसर नहीं किया देन दैट प्रॉब्लम पासेज ऑन टू बी. अब बी ने अगर आंसर कर दिया, इन दैट केस बी विल गेट 5 पॉइंट्स, राइट? इफ बी डजंट आंसर दैट प्रॉब्लम देन दैट प्रॉब्लम passes on to C. Now if C answers that problem, so it is passed what? A ने पास किया, B ने पास किया, तो it is passed twice. तो C will get what? पहले A को 6 मिला था, फिर B को 5 मिलेगा, C को फिर अभी 4 मिलेगा for that same problem. अगर C ने आंसर नहीं करा then it passes on to D. तो D ने आंसर अगर कर दिया he will get 3 points. अगर आंसर नहीं करा तो इट विल पास ऑन टू ई. तो ई अगर आंसर कर देता है इट गेट 2 पॉइंट्स. अगर नहीं आंसर करा इट फाइनली पासेस टू एफ, राइट? एफ अगर आंसर कर देता है तो विल गेट ओनली 1 पॉइंट. इफ इट डजंट आंसर द प्रॉब्लम फिर खत्म हो गया, फिर आपका पास नहीं होगा फिर, क्योंकि ए से स्टार्ट हुआ था, एफ पे खत्म हो जाएगा. दैट मीन्स इससे ये भी समझ में आता है कि टेबल से भी डायरेक्ट प्रॉब्लम अगर ए से स्टार्ट हुआ तो एफ पे खत्म हो जाएगा, उसके बाद वापस ए पे नहीं आएगा. बट अगर बी से स्टार्ट हुआ, बी का डायरेक्ट प्रॉब्लम अगर आप देखो, बी का जो भी डायरेक्ट प्रॉब्लम होगा, बी से पास होगा तो सी पे आएगा, फिर डी पे आएगा, फिर ई पे आएगा, फिर एफ पे आएगा एंड देन इट कम्स बैक टू ए, क्योंकि बी से स्टार्ट हुआ है तो ए तक को चांस मिलेंगे. ठीक है, दैट इज हाउ द ऑर्डर लुक्स लाइक. पॉइंट टेबल आपको पता है, जितनी बार पास होगा उसके करस्पॉन्डिंग एक एक कम मिलना स्टार्ट हो जाएगा. इट विल स्टार्ट फ्रॉम 6 and finally छठे पर्सन तक अगर पहुंचा he'll get 1 marks. Now that is the whole first paragraph. The following table gives partial information about the number of questions answered by each of the 6 people. So table को read करें तो ऐसा है, क्वेश्चन डायरेक्टेड एट ए से पूछा गया एंड आंसर्ड बाय. तो जैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कौन से हुए, अगर डायरेक्टली आंसर हो गया तो ए से पूछा गया, ए ने आंसर किया, तो यहाँ पे ए को 6 पॉइंट्स मिलेगा. अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑब्वियसली अननोन है, बट ए से पूछा, ए को ए ने बताया, तो वो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर कर दिया 6 पॉइंट. ए से पूछा गया और बी में बताया गया, वो नंबर यहाँ जाएगा. ए से पूछा गया, सी ने बताया, 2 क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है. तो टेबल में बहुत सारी वैल्यूज आपकी गिवन है, बहुत सारी ज़्यादा वैल्यूज आपकी नहीं भी गिवन है. सो मे बी विल हैव टू फिगर देम आउट. ठीक है, दैट इज व्हाट द फर्स्ट इंस्टेंस सेज. नाउ we have some additional information in the above table. For example, exactly 2 questions were directed at A and answered by C. That is what is meant by this table. तो ये तो clear है अपने को. The following information is also known. Now each candidate answered at least 1 and at most 3 direct questions. Now direct questions कौन से आंसर वाले होंगे? A ने 1, B से B, C से C, D का D,
ई का ई और एफ का एफ, मतलब ए को पूछा गया, ए ने जवाब दिया, बी ने पूछा, बी से पूछा गया, बी ने जवाब दे दिया, सी से पूछा, सी ने आंसर कर दिया, डी से पूछा, डी ने आंसर कर दिया, ई ने से पूछा, ई ने आंसर कर दिया, एफ से पूछा, एफ ने आंसर कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो डायगोनल आपका चल रहा है, ये वाला डायगोनल, इन्हीं में वो क्वेश्चन जाएंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन है विच हैव बीन आंसर्ड, दैट इज मेंशन्ड इन दिस। ईच कैंडिडेट आंसर्ड एटलीस्ट 1 एंड एट मोस्ट 3 डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो ये वाले जो डायगोनल में नंबर्स हैं, जो रेड मैंने डॉट्स डाल रखे हैं, इनमें either it is at least 1 जा सकता है and at most 3 जा सकता है। तो इस डायगोनल में जो वैल्यूज जाएंगी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, they can either be 1 or 2 or at best 3। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको फर्स्ट स्टेटमेंट देता है। Next, the number of questions that were passed by exactly 1, exactly 2, exactly 3, exactly 4 and exactly 5 candidates are 2, 5, 3, 1 and 1 respectively। Now this statement is very important for us। कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, मे बी रीड करना। लेट्स यूज डिफरेंट कलर्स फॉर ऑल ऑफ देम, मे बी क्लैरिटी आपको रहेगी। लेट्स यूज स्टार्ट विद दिस ब्लू। नाउ इसमें क्या दिया हुआ है, लेट्स स्टार्ट विद दिस 1 वाला पार्ट। ये 1 और ये 1, ये दोनों अच्छे हैं बिकॉज 1 एक सिंगल पॉसिबिलिटी है, 1 को ब्रेक तो कर नहीं सकते हो। सो ये क्या था, द नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट वर पास बाय एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 4 एंड एग्जैक्टली 5 कैंडिडेट्स। लेट्स फोकस ऑन दीज वंस। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स से लास्ट से स्टार्ट करा हमने, एग्जैक्टली 5 ने से पास हुए क्वेश्चंस जो आंसर्ड है, राइट, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट वर पास बाय एग्जैक्टली 5 कैंडिडेट्स वाज 1। नाउ एग्जैक्टली 5 पास हुआ कौन सा हो सकता है? जैसे अगर मैं यहां से नोटिस करना स्टार्ट करूं, एग्जैक्टली 5 कौन पास करेगा? जैसे ए से जो पूछा गया, ए से पूछा तो एग्जैक्टली 5 पास कर दे, वो कौन से क्वेश्चंस होंगे, मतलब किसने आंसर करा होगा? ए पास करेगा, बी पास करेगा, सी पास करेगा, डी पास करेगा, ई पास करेगा और एफ पास करेगा। तो एग्जैक्टली 5 ने पास करा। एक तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे कौन से, जो ए से पूछे गए होंगे और एफ ने आंसर करा। नंबर कितना आएगा ये नहीं मुझे पता, बट दीज विल बी द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन पास्ड 5 टाइम्स। इसी तरीके से आप देखो सर्कुलर ऑर्डर में चलना है बेसिकली। ए से पूछा, एफ पे खत्म होगा, तो अभी अगर बी से पूछा तो कहाँ पे खत्म होगा आपका? ए पे खत्म होगा। ये वाली वैल्यू बी से पूछा, ए पे खत्म होगा, वो क्वेश्चंस होंगे जो एग्जैक्टली 5 टाइम्स होगा। अब एक बार आगे बढ़ाते जाओ। सी से पूछा तो बी पे खत्म होगा, डी से पूछा तो सी पे खत्म होगा, ई से पूछा तो डी पे खत्म होगा एंड फाइनली एफ से पूछा तो ई पे खत्म होगा। तो मतलब दिस प्लस ये जो पांचों वैल्यूज है, इन टोटल इन पांचों वैल्यूज का, इन 6 वैल्यूज का जो टोटल आना चाहिए था, कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड, दिस इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट टू फिलिंग दिस पर्टिकुलर टेबल। ये एग्जैक्टली 5 टाइम्स पास होने वाले क्वेश्चंस कौन से बनेंगे? वो ये वाले क्वेश्चंस बनेंगे, राइट? तो अगर आपको अभी क्लिक नहीं करा ना, मे बी पॉज दिस वीडियो, थोड़ा पीछे जाओ एंड ट्राई टू विजुअलाइज कि कौन से वो प्रॉब्लम्स होंगे जो 5 टाइम्स पास होंगे। ए से पूछे गए, एफ ने बताया वो 5 टाइम्स है। बी से पूछे गए, ए ने बताया 5 टाइम्स। सी से पूछा गया, बी, डी से पूछा गया, सी ने बताया, ई से पूछा गया, डी ने बताया और एफ से पूछा गया, ई ने बताया। दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन पास्ड 5 टाइम्स। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। क्या? अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो 6 आपने ब्लू कलर में नंबर डाले हैं, इसको थोड़ा सा साफ करा जाए। लेट्स रिमूव दिस रेड वाला पार्ट। Obviously, you will not be getting different colored pens. I am just using different colors so that you can visualize well कौन से मैं numbers के यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो 6 वैल्यूज, इनका एडिशन आपका टोटल कितना आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था। इन 6 वैल्यूज में आपको एक ऑलरेडी 1 दिख रहा है ना, दैट मीन्स ये बाकी के जो आपके ब्लू कलर में मैंने नंबर डाले, दीज आर ऑल इक्वल टू 0। तो इन सबको मैं यहाँ से हटा के, ऑल दीज विल एक्चुअली बी इक्वल टू 0, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस। राइट, सो दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0 और ये आपका 1 और इधर आपका A और F, दिस इज ऑल्सो 0। तो ये आपने 1 अकाउंट कर लिया। You will have to proceed in the similar way. Let's go to this 1 again, right? Again एक ही पॉसिबल वैल्यू है, इसको ढूंढते हैं कहाँ पे। तो ये कौन से क्वेश्चन होंगे? रिवर्स ऑर्डर में जा रहे थे, तो ये एग्जैक्टली आपके 4 टाइम्स पास होंगे। एग्जैक्टली 4 टाइम्स पास, अगेन लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर। एग्जैक्टली 4 टाइम्स पास कौन होगा? अगर ए से पूछा गया तो ABCD पास कर दे, E बताएगा। दिस इज 1 पॉसिबल, 4 टाइम्स पास। फिर अगेन वही, जैसे डायगोनली चलता है हमेशा। तो B से पूछा, कौन बताएगा? F बताएगा। सी से पूछा
सी से पूछा तो कौन बताएगा, ए बताएगा, फिर डी से पूछा तो बी बताएगा, ई से पूछा तो आपका सी बताएगा, एंड फाइनली एफ से पूछा तो कौन बताएगा, डी बताएगा। तो ये है आपके ये 4 वैल्यूज और ये 2 वैल्यूज, इन सब का एडिशन फिर से कितना बोला था, 1 बोला था। तो अगर आप नोटिस करो इनमें ऑलरेडी आपका एक 1 प्लेस्ड है ना, मतलब बाकी की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। सो दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज ऑलरेडी 0, दिस इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0। ये आपकी फिर से ये 1 को हमने पूरा काउंट लिया एंड दिस इज ऑल 0, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। देन लेट्स मूव ऑन टू दिस 3 वाला पार्ट। ये कौन से क्वेश्चन है जो कि एग्जैक्टली क्या होंगे, 3 टाइम्स पास होंगे। अब एग्जैक्टली 3 टाइम्स पास वाले कौन से बनने स्टार्ट होंगे, एग्जैक्टली 3 टाइम्स। जैसे ए से पूछा तो ABC पास करेंगे, राइट, तो ये D आंसर कर सकता है। तो अगेन वो डायगोनली चलेगा, AD, फिर BE, फिर CF, फिर उसके बाद D के बाद वापस D के साथ A, फिर E के साथ B और F के साथ आपका ये C। तो ये जो रेड वाली वैल्यूज है दिस और यहाँ पे ये जो दिस, इनका जो एडिशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका टोटल मिला के 3 होना चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है आपका, इन दीज 6 रेड वाले वैल्यूज ब्लॉक्स, इनमें आपका 2 1 गिवन है, तो आउट ऑफ 3 2 तो अकाउंटेड है, तो एक 1 आपका आना बाकी है। तो 1 के भी प्लेस करने के ना 1 2 और 3 स्पेसेस आपके बाकी हैं, सो वी कैन नॉट गो हेड एंड पुट दैट एनीवेयर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट है, आई हैव ऑलरेडी रेड दिस, सो ऑब्वियसली आई विल से दिस। अभी आपने भी जैसे ऑर्डर में पढ़ोगे तो ये नहीं बोल पाएंगे, बट व्हेन यू गो अहेड इन दिस पर्टिकुलर कंडीशंस वाला सेट, राइट। नाउ दिस स्टेटमेंट्स को पढ़ो, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस डायरेक्टेड एट ई बट आंसर्ड बाय बी। तो डायरेक्टेड एट ई एंड आंसर्ड बाय बी, यही रेड वाली वैल्यू जो हमारा अभी डिस्कशन चल रहा है उसकी वैल्यू की बात कर रहा है। दिस वैल्यू was the same as that directed at A but answered by D। तो A से पूछा और D ने आंसर करा, अगेन दैट सेम वैल्यू विच इज इंपॉर्टेंट टू अस। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या कह रहा है, ये दोनों सेम है, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि दिस प्लस दिस प्लस दिस 1 जाना है, ये हमने डिसाइड कर रखा है, क्योंकि टोटल आपका रेड वाले में 3 डालना है, 2 बना हुआ है, 1 डालना। इन दोनों में वैल्यू क्या जा सकती है, 1 जा नहीं सकता ना, बिकॉज फिर आपका टोटल ये दोनों मिला के 2 दे देंगे, हमें तो टोटल इन तीनों में मिला के 1 फिल करना है। दैट मीन्स आई कैन कंक्लूड कि ये दोनों जगह पे क्या जाएगा, आपका 0 जाएगा। दिस इज अगेन 0, दिस इज ऑल्सो 0, और बचा हुआ आपका यहीं पे क्या फिल हो जाएगा, फिर आपका 1, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये वाला स्टेटमेंट एक्चुअली हमने यूज किया और उससे अपना क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये हमने डिसाइड कर लिया, ओके। अब बचता है आपका ये 2 और 5, बट मुझे एक स्टेटमेंट दिख रहा है, पहले मैं इसको बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, इसको एटलीस्ट मैं यूज कर लूँ। दे कुड हैव गिवन दिस इन द टेबल एज वेल, बट एडिशनल स्टेटमेंट दिया है। सी आंसर्ड एग्जैक्टली 2 डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो सी का डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब ये वाला वैल्यू आपको मिल गया, दैट इज एग्जैक्टली 2। इसको मैं डिफरेंट कलर में पुट कर देता हूँ, दिस इज 2, क्योंकि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। Now the situation stands at this juncture कि ये 2 and 5 अभी फिल करना है और कुछ वैल्यूज आपने फिगर आउट कर लिया, बट एक चीज़ अब थोड़ा सा नोटिस करो, देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू डिसाइड। एक चीज़ दी हुई थी ना स्टार्टिंग में, देयर आर टोटल ऑफ 24 क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा, देयर आर टोटल ऑफ 24 क्वेश्चंस, और ये बोल रखा था 4 क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू ईच कैंडिडेट। तो जो क्वेश्चन डायरेक्टेड एट वाला ये पूरा रो होना चाहिए, हर एक कैंडिडेट के लिए कितना होना चाहिए, टोटल मिला के 4 होना चाहिए, मतलब हर एक कैंडिडेट से पूछा कितना गया 4। और अगर मैं जैसे बोलूँ कि आंसर कितना करा तो मैं कॉलम से रीड करूँगा। अभी आंसर करा से मतलब नहीं है मेरे को, क्योंकि वो तो मेरे को नहीं पता है, वो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, बट पूछा कितना गया है, सबसे 4 4 4 4 4 ईच पूछा गया है। तो बहुत सारे, अगर आप नोटिस करो जैसे ए वाले में ये 2 वैल्यूज मिसिंग है, तो अभी नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि एक ही 2 मिला है, इन दोनों का सम 2 है पूछा है। यहाँ पे भी नहीं मिला है, यहाँ पे भी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो सी वाले में, यहाँ पे टोटल 1 + 2 + 1 4 बन चुका है। 4 बिकॉज यहाँ पे बन चुका है, तो आई कैन गो हेड एंड कंक्लूड कि अब और कोई वैल्यू आनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली 0 लिख सकता हूँ। एंड डी में अगेन 2 वैल्यूज मिसिंग है, मैं नहीं लिख सकता क्योंकि 2 + 1 3 बना हुआ है, तो एक 1 कहीं ना कहीं जाएगा, एक जगह 1 जाएगा और एक जगह 0 जाएगा, मुझे नहीं पता कि कहाँ पे जाएगा, वो भी छोड़ देते हैं। When it comes to E again, E में अगेन मैं बोल सकता हूँ कि ये वैल्यू क्या आएगी, बिकॉज 5 वैल्यूज में आपका एक वैल्यू 2 लिखा हुआ है, बिकॉज पूरे रो का सम 4 बनाना है, तो दिस मिसिंग वैल्यू अगेन हैज टू बी 2, राइट। ये भी आपका क्लियर कट फिल हो गया।
नाउ ये वाला पार्ट अपने डील कर लिया है। ओके अब यहाँ पे आगे प्रोसीड करें, जैसे लेट्स गो टू दिस 5 वाला पार्ट। नाउ इस 5 वाले पार्ट में लेट्स यूज ग्रीन कलर। इस 5 वाले में ये कौन से क्वेश्चन थे? दोज वर पास्ड बाय एग्जैक्टली 2। तो एग्जैक्टली 2 कहाँ से स्टार्ट होगा? ए जो क्वेश्चन डायरेक्ट करे गए ए पे, ए ने पास करा और बी ने पास करा, दो लोगों ने पास करा, मतलब ये वाले डायग्राम में स्टार्ट होगा दिस 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 एंड दिस, और फिर ई से पूछा जाएगा तो फिर वापस ए पे आएगा दिस एंड दिस। तो ये जो ग्रीन वाले वैल्यूज हैं इनका एडिशन आपका होना चाहिए कितना? 5। नाउ अभी अगर मैं नोटिस करूं इनमें वैल्यूज कितनी आ रही है? 2 प्लस एक 0 ऑलरेडी 2 है, और इसके बाद 2 प्लस 1। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ऑलरेडी ऐड अप करके आपका 2 प्लस 1 कितना बन गया? 5 बन गया। दैट मीन्स ये जो ग्रीन वाला डायगोनल है इसमें और जितनी भी रिमेनिंग वैल्यूज है जो फिगर आउट नहीं करी है, दे आर ऑल इक्वल टू 0। आई कैन गो अहेड एंड फिल देम। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और यहाँ तो 2 and 1 था ही आपका, राइट? दिस इज फिल्ड। नाउ एक अगेन इंटरेस्टिंग चीज क्रिएट होगी, किसके लिए? ये डी के लिए। डी के लिए अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे कितना है? 2 प्लस 1 है, एक ही ब्लॉक बचा है, तो इसमें कितना आना चाहिए आपका? 1 आना चाहिए। आई विल यूज अ ब्लैक कलर फॉर दिस, ठीक है? दिस इज नाउ फिल्ड एज 1। नाउ लास्ट पार्ट आपका आता है ये 2 वाला। इस 2 को यूज करें तो ये 2 कौन सा होगा? एग्जैक्टली 1 से पास हुआ, एग्जैक्टली 1 में कौन सा पास करेगा? ए ने पास करा तो बी ने आंसर करा, तो ये वाले डायग्राम पे तो दिस 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 एंड आपका कौन सा यहाँ तक आ गया, राइट? इसमें फिर आपका एफ से पास हुआ तो ए ने आंसर करा, ये वाला। तो अब यहाँ पे अगर नोटिस करें तो दिस प्लस दिस तीनों वैल्यूज आपके अननोन है, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट इन तीनों का जो एडिशन आना चाहिए, इन तीनों का एडिशन, पहले आप ये भी देखो इस पूरे डायगोनल में एक 1 भी है ऑलरेडी, राइट? तो एक 1 आपका मिल गया आउट ऑफ दिस 2, तो इस 1 को छोड़ के इन तीनों वैल्यूज का सम कितना आना चाहिए आपका? 1 आना चाहिए। नाउ मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे ना कुछ वैल्यूज मैं प्लग इन कर देता हूँ, मतलब कुछ लिख देता हूँ, अपने लिए थोड़ा सा टास्क ईजी रहेगा। सो आई विल गो अहेड एंड लेट्स से राइट, यहाँ पे लेट्स से ए है, यहाँ पे बी है, ये दोनों वैल्यूज मिसिंग है, लेट्स से ये सी है और ये डी है, और यहाँ पे ये लास्ट वाले में मिसिंग है, तो ये ई है और ये एफ है। तो मुझे क्या क्या रिलेशन दिखा? इस 2 वाले से मुझे एक रिलेशन दिख रहा है कि ये जो पास हुआ था बी प्लस डी और प्लस ई। सो आई विल राइट दिस डाउन हियर। सो बी प्लस डी प्लस ई, ये तीनों एडअप करके क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, बी प्लस डी प्लस ई, राइट? तो मुझे एक चीज पता चला है, वन तो ब्रेक कर ही नहीं सकते ना, मतलब बी डी ई में से कोई एक ही वैल्यू क्या होगी? 1। अभी मैं यूनिकली नहीं फिगर आउट कर पाऊंगा, बट दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी 1। नाउ इसके बाद अब मैं क्या बोल सकता हूं, ये भी नोटिस करो, टोटल इसने एक लास्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, दिस बिकम्स वेरी क्रूशियल। ऑल द 24 क्वेश्चंस वर आंसर्ड एंड ईच कैंडिडेट हु आंसर्ड एनी क्वेश्चन आंसर्ड इट करेक्टली। तो मतलब टोटल के टोटल 24 क्वेश्चंस आंसर हुए हैं। नाउ ये कौन से नंबर्स थे जो एग्जैक्टली 1 टाइम पास हुए, 2 टाइम्स पास हुए, 3 टाइम्स पास हुए, 4 टाइम्स पास हुए, 5 टाइम्स पास हुए? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से अगर मैं इनका नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को वो क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कभी पास हुए ही नहीं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे और वो आंसर हो गए होंगे। आई होप दिस लॉजिक इज क्लियर कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो पास हुए हैं, मुझे वो निकालना है जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है। डायरेक्ट क्वेश्चन एक्चुअली में कौन सा था स्टार्टिंग से? ये पूरा ये इस डायगोनल पे वैल्यूज, ये वाला ए सी 2 2 2 एंड एफ, इनका मेरे को एडिशन मिल जाएगा। तो इनको ऐड करो तो 5 + 2 7 + 3 10 और ये 12 है। तो आउट ऑफ 24 12 आपके एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2 एग्जैक्टली 3 एग्जैक्टली 4 एग्जैक्टली 5 पास वाले हैं। तो 12 क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग इसमें फिट होने चाहिए थे। नाउ इनमें 12 अगर होना चाहिए तो इसमें से नोटिस करो 12 में से 2 2 एंड 2 इज ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर, तो आपका 6 माइनस हो जाएगा। तो जो बचे हुए वेरिएबल्स है दैट इज a + c + f, इनका एडिशन कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। So these two conditions are finally left. We have exhausted all the conditions that are there in this particular problem. Now we'll have to go to each of the problems and solve them one by one. Right? Now let's start with the first problem. If no question directed at f was answered by a, then the difference in the number of points obtained by E and F is. Now सबसे पहले इस स्टेटमेंट को कॉम्प्रिहेंड करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए क्या बोल रहा है? इफ नो क्वेश्चन डायरेक्टेड एट F was answered by A, तो F answered by A, ये E की वैल्यू क्या कहना चाहता है फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए? दिस E वैल्यू इज एक्चुअली व्हाट? 0।
ई की वैल्यू आपकी 0 हो गई। तो अगर आप नोटिस करो ई को अगर आप 0 डाल दोगे तो ये एफ की वैल्यू निकल आएगी ना, क्योंकि टोटल आपका रो का एडिशन आपका फिक्स्ड है, 4 बनना चाहिए। तो ई अगर 0 हो गया तो 1 + 1 2 है, तो एफ की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। तो ई और एफ की वैल्यू और ई की वैल्यू आपकी फिक्स्ड हो गई। अब पूछा क्या था, देन द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑब्टेन्ड बाय ई एंड एफ। ई एंड एफ के नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑब्टेन्ड का आपको डिफरेंस चाहिए। आई कैन गो अहेड, अब इसके आगे मेरे को बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है। ई और एफ को पॉइंट्स कितने मिले ये फिगर आउट करना है, राइट। तो अभी अगर आप चेक करो ई को कितना पॉइंट्स मिलेगा और एफ को कितना पॉइंट्स मिलेगा, वेयर एफ इज एक्चुअली इक्वल टू 2। तो ई का अगर हम चेक करें, जैसे इसने ये एक आंसर किया था, इसने ये आंसर किसका किया था, जो बी से पूछा गया था। तो ये कितने लोगों ने पास किया था, बी ने पास किया था, सी ने पास किया था, डी ने पास किया था, राइट। बी ने पास किया, सी ने पास किया, डी ने पास किया, तब जाके ई ने आंसर किया। तो ही वुड हैव बीन द 4th पर्सन टू आंसर दैट प्रॉब्लम। तो अगर बी ने आंसर किया होता तो कितना मिला होता, 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3। तो इस एक पे उसको कितना पॉइंट्स मिला, 1 × 3। देन ये 1 आपका किससे पूछा गया, डी से पूछा गया और ई ने आंसर कर दिया। इज आर एक्चुअली द सेकंड पर्सन, एक बार पास हुआ तो 5 नंबर मिलता है। तो 1 × कितना हो जाएगा, 5। और फिर आपका ये 2 क्वेश्चंस, ये 2 कौन से हुए, डायरेक्ट वाले। तो ये 2 पे उसको कितना मिलेगा, 6 पॉइंट्स। एंड फाइनली ई ने ये भी बताया, तो एफ से पूछा गया और ई ने बताया। एफ से पूछा है तो रिवर्स ऑर्डर में गया, तो ई वुड हैव बीन द लास्ट पर्सन, उसको 1 पॉइंट मिलेगा इस एक क्वेश्चन के लिए। तो ये आपका टोटल पॉइंट्स ई का बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस वुड बी 3, दिस वुड बी 5, दिस वुड बी 12, दिस वुड बी 6। एंड एफ के पॉइंट्स कैलकुलेट करें, इसमें आपका एफ की वैल्यू क्या गई, यहाँ पे 2 गई है, राइट। इसको ध्यान रखेंगे। अब ये एक पॉइंट कौन सा हुआ, सी से पूछा गया, एफ ने बताया। तो सी से पूछा, एफ बताया। तो सी से पूछते तो 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3। तो इस पे उसको 3 पॉइंट्स मिलेगा और इसको हम अलग ऐड करेंगे, इस पे उसको 3 पॉइंट्स मिलेगा। द स्पेस इज वेरी लेस नाउ। उसको 3 पॉइंट मिला और यहाँ पे f की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। तो ये f का डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, तो 2 पे उसको 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे, दैट इज 12 पॉइंट्स। तो f का टोटल पॉइंट मेरा फिर फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से कितना बन गया, 15 पॉइंट्स। और इसका कितना हो जाएगा, 12 + 5 18, 18 और 8 26। तो 26 - 15 दैट वुड गिव मी 11 पॉइंट्स। ओके सॉरी, यहाँ पे गलती है। यहाँ पे ये ई में क्या था, ई में एफ को पूछा गया था और ई ने बताया था, राइट। एफ को पूछा गया, ई ने बताया, तो दैट वाज 1 पॉइंट, सॉरी। तो दैट वाज 1 × 1 और यहाँ पे आपका 1 आ गया था। तो ये 26 नहीं हुआ, ये कितना हो गया, 12 + 8 21, सॉरी दिस इज 21 एंड 21 - 15, दिस वुड बी 6 पॉइंट्स। सो द आंसर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम बिकम्स 6, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। तो बेसिकली आपको अलग अलग क्वेश्चंस में ना यही जो आपके वेरिएबल्स हैं इनके अलग अलग कंडीशंस दिए हुए हैं एंड विल हैव टू फिगर आउट द वैल्यूज, पॉइंट्स, जो भी जिस तरीके से भी पूछा गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, विल क्लियर दिस अप अ लिटिल बिट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो सेकंड प्रॉब्लम में क्या कंडीशन है, इफ बी एंड ई आंसर्ड एन इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑब्टेन्ड बाय द विनर इज। तो लेट्स सी द कंडीशन, बी एंड ई आंसर्ड एन इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो बी एंड ई का टोटल एडिशन सेम होना चाहिए। तो अगर ई का नोटिस करें, ई का टोटल आपका नंबर ऑफ आंसर्ड प्रॉब्लम्स मेरे को पता है कितना है, 1 + 1 + 2 + 1, तो 3 + 2 5। तो इसका 5 है। तो बी का भी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। बी का अगर 5 होना चाहिए और यहाँ पे 1 है, तो मतलब बी + सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी, 4 होनी चाहिए। अब बी एंड सी की वैल्यू आपकी 4 होनी चाहिए। तो अगर हम कंडीशन नोटिस करें, देखो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकती है आपकी पॉसिबल वैल्यूज। नाउ सबसे पहले अगर आप नोटिस करो, जैसे आपने मान लो बी को क्या रखा, 0 रखा सपोज, राइट, क्योंकि बी की बहुत ज़्यादा पॉसिबल वैल्यूज नहीं है, इससे मेरे को दिख रहा है बी मैक्स टू मैक्स 1 जा सकता है। तो आइदर बी 0 और बी 1। अगर बी को आपने सपोज 0 डाला तो सी की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 4। क्या सी 4 हो सकता है, द आंसर इज नो, बिकॉज सी अगर यहाँ पे 4 हुआ तो 4 + 1 ऑलरेडी आपका 5, इससे बड़ा चला गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स बी की अगली पॉसिबल वैल्यू फिट होनी चाहिए। तो बी को 1 रख दिया और सी को कितना रख दिया, 3 रख दिया। तो बी 1 हो गया, सी 3 हो गया, एंड बिकॉज सी 3 हो गया तो एक्चुअली में अब आपको डी की भी वैल्यू मिल गई। डी की वैल्यू कितनी मिल गई आपकी, बिकॉज सी 3 है तो इस पूरे रो में 3 + 1 ऑलरेडी 4 कंप्लीट हो गया। तो डी को क्या होना पड़ेगा आपका
0 होना पड़ेगा, तो D 0 हो गया। ऑल्सो आप नोटिस करो B की वैल्यू आपको पता थी 1, तो D और E वैसे भी आपका एक्चुअली में दोनों 0 होना था, तो D भी 0 है और E भी 0 है, तो E भी कितना हो गया आपका 0 हो गया, तो E 0 हो गया। तो E अगर 0 हो गया तो F की वैल्यू मिल गई। अब आपको F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 1 ये हो गया 2, तो F की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। अब आपका क्या यहाँ पे वेरिएबल बचा है, तो C की वैल्यू आपको मिल गई है, आपको F की वैल्यू मिल गई है, तो C और F मिला के कितना हुआ, C आपका 3 हुआ, F आपका कितना हुआ 2 हुआ, तो 3 + 2 ये मिला के आपका 5 हो गया। C और F अगर आपका 5 है तो A की भी वैल्यू मिल गई, एंड A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। दैट मीन्स आई कैन गो हेड एंड फिगर आउट ऑल द पॉसिबल नंबर्स। तो अब पूछा क्या है, इट इज अ लिटिल लेंदी, इसको आप खुद से ट्राई करना, आई टेल यू द आंसर, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑब्टेन्ड बाय द विनर इज, द आंसर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो वुड बी B, राइट। एंड B के टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो आपके कैलकुलेट होंगे, बिकॉज वी हैव टू फिगर आउट द पॉइंट्स, सब कुछ वैल्यू निकल जाएगी, B के टोटल पॉइंट्स वुड बी 27, राइट। आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर टू मेक दिस वीडियो शॉर्ट। प्लीज गो अहेड एंड कैलकुलेट B का ही, देखो B से स्टार्ट भी कर सकता हूँ, बिकॉज B में थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज आपकी जा रही है, B and C की, B and C क्योंकि दोनों चला गया 1 and 3, तो यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट विद दिस, बाकी के आपके वैल्यूज इससे कम आ रहे होंगे। नाउ लेट्स रीड द थर्ड स्टेटमेंट। इफ द नंबर ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस आंसर्ड बाय A, B, F आर डिफरेंट, राइट, डायरेक्ट क्वेश्चंस आंसर्ड बाय A, B, F, तो कौन सा हो गया आपका A, B, F का, A वाला ये हो गया, B का ये हो गया और F का आपका ये हो गया, वही जो आपका ये जो A, C, F की आपने इक्वेशन बनाई, तो ये तीनों क्या कह रहा है, ये डिस्टिंक्ट है। नाउ ये तीनों डिस्टिंक्ट है और आपको बोल रखा था ना इसमें एटलीस्ट आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस का, ये फर्स्ट स्टेटमेंट ने बोला था, ये सारी वैल्यूज 1 और 3 के बीच में ही लाई करती है, 1, 2, 3 हो सकता है, और तीनों डिस्टिंक्ट है, तो एक ही पॉसिबिलिटी मेरे को दिख रही है, क्या हो सकता है, ये A, C और F इन एनी ऑर्डर वुड बी 1, 2 एंड, राइट, ऑर्डर नहीं पता अपने को, बट 1, 2 एंड 3 होगा। अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से सोचूं तो F मेरा एक्चुअली में 3 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, बिकॉज 1 + 1 ऑलरेडी है, तो F में 3 नहीं जा सकता क्योंकि 4 से ऊपर नहीं जाना है। इसमें A भी 3 नहीं ले सकता बिकॉज C में ऑलरेडी 2 है, तो ये 3 नहीं हो सकता बिकॉज 5 हो जाएगा। तो मेरा A, C और F में 3 लेगा कौन, फिर आपका ये C ले सकता है, तो C की वैल्यू एक्चुअली मेरे को मिल जाएगी, तो C वैल्यू वुड बी 3। अब बिकॉज C मेरा 3 आ जाएगा तो फिर मेरा D आ जाएगा, D मेरा कितना आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, और यही चीज आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी हो गई। देन द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड बाय C and D टुगेदर, तो C and D, तो D का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर देखो तो आंसर्ड कितना है, 2 है, और C का अगर मैं देखूं तो D की वैल्यू 0 हो गई, तो सिर्फ यहाँ पे 2 और 2, तो आंसर कितना बन जाएगा, 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 2, दैट वुड बी 6 क्वेश्चंस, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। Now let's go to the final problem. If the number of points obtained by C is 25, then the difference in the number of questions answered by A and B is, तो C का total points कितना दिया हुआ है, 25। Now C का अगर मैं total points, वही सेम लॉजिक से अगर मैं कैलकुलेट करना स्टार्ट करूँ तो C का ये नंबर आएगा, राइट, 2, D and 2, इसने क्वेश्चन आंसर करे, तो C ने ये जो 2 आंसर करे ये किससे पास हुए थे, A से पास हुए थे, तो 6, 5 and 4, तो यहाँ पे इसको कितना पॉइंट्स मिला होगा, इसको 4 पॉइंट्स मिले होंगे, तो 2 × 4 8 हो जाएगा, प्लस ये D जो है, ये जो क्वेश्चन है ये किससे पास हुआ है, B से पास हुआ है, तो इस पे इसको कितना मिल जाएगा, 5 पॉइंट्स ईच, तो 5D। एंड फाइनली ये 2 क्वेश्चंस C का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो 2 × 6 कितना मिल जाएगा, 12। ये सब कुछ ऐड अप करके कितना बन रहा है आपका 25, तो 8 + 12 20, 25 डिफरेंस कितना 5, तो इससे क्या मिल जा रही है, D की वैल्यू वुड बी 1। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, D की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब D अगर आपका 1 है, अब लास्ट प्रॉब्लम है इसमें लिखता ही चलता हूँ, तो D आपका अगर ये 1 है तो 1 + 1 2 हो गया, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2, राइट, C की वैल्यू भी अब आपकी 2 आ गई। एंड D आपका नोटिस करो 1 है, तो B और E दोनों 0 0 होंगे, तो B भी 0 हो जाएगा और आपका E भी 0 हो जाएगा, B 0 देन E 0, E 0 है तो पूरा पूरा बचा हुआ F में चला जाएगा, तो 1 + 1 F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, राइट, F की वैल्यू आपकी 2 आ गई। अब क्या बचा इसमें, A, C, F में अगर मैं देखूं तो C और F मिला के 4 है, राइट, C और F मिला के अगर 4 है तो A की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो A की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, दिस इज, ये वैसे भी निकल जाता भाई।
नाउ पूछा क्या था, देन द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड बाय ए एंड बी, बस आपको डिफरेंस निकालना है। तो ए का नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड कितना हो गया 2, 3, 4, 5, 6, और बी का पूछा है, बी का कितना हो गया 2 and 1, that is 3. So 6 and 3 का difference, the answer to the final problem becomes 3. Right? Now, I would say the set is towards the moderate to difficult side. Why? The logic to the set is not too difficult, but there are a lot of calculations with respect to each questions. Right? So you'll have to be very careful because there are very small numbers, they are very intricately linked together. Right, so we'll have to be very careful in the set, but yes, in an exam scenario maybe these numbers are not too daunting at first, बस आपको वो pattern थोड़ा सा समझना था what these numbers are actually representing. Once you get that logic, the table would be filled, but then remaining values के around आपको ये problems one by one deal करने पड़ते. Right? I hope you understood this set. Again, if you have any doubts, again just put that in the comments. Thank you.